Hello everyone, this is our English class and today we will learn about literary terms. So basically, when we read any poem or poetry, we find out some similarities between them and some dissimilarities. So we name these similarities and dissimilarities in certain category, and that category is literary terms. So if you find a poem of 14 line, what would be name of that poem? That poem would be called as a sonnet. Sonnet is a 14-line poem. Okay, it is basically based on iambic pentameter. Every line is linked to the next line to each other in a definite rhyme scheme. And in literature, sonnet is divided in two categories: Italian, or we can say Petrarchan, and the second one is English sonnet or the Shakespeare sonnet. So, before reading to that sonnet properly, I would like to give you an example of this type of poem. You have your book, The Lotus, written by Toru Dutt, is the best example of a sonnet. If you count the lines of The Lotus, the poem, you will find out that there are 14 lines. Okay, so now we'll study line to line and I will explain this sonnet into mother tongue as well. Sonnet is a lyric poem which consists of 14 iambic pentameter lines linked by a definite rhyme scheme. Sonnet एक तरह की पोम होती है, लिरिक पोम होती है, लिरिक्स होते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं और एक पर्टिकुलर ये राइम स्कीम के तहत लिखी जाती हैं. ठीक है. In English literature, sonnet is divided in two categories: Italian or Petrarchan, named after the 14th century Italian poet Petrarch. So there was an English Italian poet named as Petrarch, and Italian or Petrarchan category जो बनाई गई है उन्हीं के नाम के पीछे बनाई गई है. The second one is English sonnet or the Shakespeare sonnet. शेक्सपियरन sonnet के नाम से दिया गया है दूसरी कैटेगरी. ओके. The Petrarchan sonnet falls into two parts: an octave rhyming A B B A A B B A, and a sestet rhyming both C D E and C D E, or some variants such as C D C or C D C. ओके. जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है उसके बाद में बात करेंगे. पहला है हमारे पास Petrarchan sonnet. इसके अंदर क्या होता है, 14 लाइन्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. पहला तो ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन्स, ठीक है, उनकी राइम स्कीम इस तरीके से होती है. और दूसरा पार्ट को हम कहते हैं सेस्टेट यानी 6 लाइन्स. ऑक्टेव 8 लाइन्स, सेस्टेट 6 लाइन्स. इनकी जो राइमिंग होती है वो होती है सी डी ई यानी 3-3 लाइनों के हिसाब से, और यहाँ पर 2-2 लाइनों के हिसाब से. ठीक है. अब कुछ जगह पर CDCE और CDC भी आपको देखने को मिलेगी. Thomas White first introduced Petrarch's sonnet in England in the early 16th century. पहली बार Petrarchan sonnet को कब लिखा गया था? थॉमस वाइट के द्वारा लिखा गया था. 16th century में लिखा गया था. और कहाँ पे? इंग्लैंड में. So basically now we are reading some of the history of these literary terms as well. We have to remember one word questions can be chosen from such terms also. Okay. The Petrarchan form was later used by Milton, Wordsworth, D.J. Rossetti and other sonnetiers. अब क्या होता था, ये जो सोनेट यूज़ करते थे, पोम्स लिखते थे जो लोग, ठीक है, जो पोइट्स ये सब चीज़ें यूज़ करते थे उनको सोनेटियर्स भी बोला जाता था. ठीक है. अब इनमें कुछ नाम यूज़ किए गए जिन्होंने पेट्रार्कन फॉर्म में लिखी है पोम. वो है मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, रोसेटी. ठीक है. द अर्ल ऑफ शेरे एंड अदर इंग्लिश एक्सपेरिमेंटियर्स in the 16th century also developed a new form called the English or the Shakespearean sonnet. अब क्या हुआ था, बाकी इंग्लिश पोएट जो हुए हैं उन्होंने 16th सेंचुरी के अंदर दूसरा फॉर्म की वो भी निकाला, सोनेट दूसरे तरीके से भी निकाला. उसको उन्होंने नाम दिया शेक्सपियरन सोनेट या इंग्लिश सोनेट. पहला तो इटालियन बेस था, इटालियन और पेट्रार्कन. ठीक है. अब दूसरा निकाला उन्होंने इंग्लिश, क्योंकि इंग्लैंड इटली से अलग है. ठीक है. तो उन्होंने अपने हिसाब से निकाला. The stanza form on this type of sonnet is different from the Petrarchan sonnet. अब ये stanza form में होती थी. ठीक है.
यहाँ पर ऑक्टेव और सेस्टेट का नहीं फॉलो किया गया था, उन्होंने अपनी तरीके से निकाला था. This stanza falls into three quatrains and a concluding couplet. अब ये जो था इसमें 3 क्वार्टरेंस यानी 4-4 लाइनों के 3 पैराग्राफ्स होते थे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे आप. और एक एंड में कपलेट यानी कि 2 लाइन होती थी. अब इसकी राइम स्कीम कैसे होती थी? A B C D E F एंड G एंड में एक कपलेट, ठीक है. There was one specially important variant, the Spenserian sonnet, in which Spenser links each quatrain to the next by a continuing rhyme: A B B C D, and E. The Lotus by Toru Dutt is a Petrarchan sonnet. अब वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का वेरिएंट भी लाए थे, स्पेंसरियन सोनेट करके लाए थे स्पेंसर, जिसमें हर क्वार्टरेन जो है वो दूसरे क्वार्टरेन से जुड़ा होता था राइम स्कीम के थ्रू, ठीक है. और एंड में उनका भी एक कपलेट आता था. तो हमारे पास बेसिकली 2 तरह के सोनेट हुए हैं. पहला है इटालियन पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है. दूसरा है इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट. और स्पेंसर वाला जो सोनेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास में. जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, लोटस जो पोम है हमारी, द लोटस, तो दत्त के द्वारा लिखी गई है. ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, यानी कि इसके अंदर भी किस तरह की आपको दिखेगी, एक ऑक्टेव दिखेगा और एक सेस्टेट दिखेगा, यानी कि 8 लाइन्स दिखेंगी एंड देन आपको 6 लाइन दिखेंगी, और उनकी राइम स्कीम इस तरीके से होगी. तो अब आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है. इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे कि इनकी राइम स्कीम क्या है. चार्ट पे आप लिखेंगे दोनों में से किसकी राइम स्कीम डिफरेंट है और किस तरीके से वहाँ पे फॉलो की जा रही है राइम स्कीम, तो आपको समझने में और याद करने में आसानी रहेगी. एक सिंपली आप यहाँ पे पढ़ लें, इससे आपको याद नहीं रहेगा. एक तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, आपको समझ आएगा तभी कि किस तरीके से दोनों के अंदर चीज़ें डिफरेंट हैं और उनकी राइम स्कीम क्या है. सो अब है दूसरी टर्म, elegy. Okay, so basically there are 2 types of pronunciation. First is American and the second one is British. So basically I would like to give you more emphasis on the British accent, because English is born in that area, in that land. Okay, so basically the mother tongue of England is English, Britain. So we should focus on the British accent. So British accent says that it is elegy. Okay, elegy. In Greek and Roman literature, an elegy was any poem composed in a special elegiac meter, and in England, the term was often applied to any poem of solemn meditation. Basically, elegy जो है वो एक पोम होती है जिसमें आप दुख को बताते हैं, दुख के बारे में ये पोम होती है. यहाँ पर आपको मतलब आपको सैड एक पूरा जो होती है ना पोम, उस पर लिखी जाती है, सैडनेस पर लिखी जाती है ये पोम. या फिर यहाँ पर दुख के बारे में, कोई मर गया है, उसकी प्रेज़ करने के लिए उसको, या उसकी तारीफ़ करने के लिए यहाँ पर शब्द जो है यूज़ किए जाते हैं. या किसी की फ्यूनरल जो है उसके बारे में यहाँ पे एक स्पीच दी जा रही है, उस तरीके से ये पोम लिखी जाती है. यानी कि आपने अपने कोई ख़ास व्यक्ति को खो दिया है, उसकी याद में, उसके दुख में, उसकी तारीफ़ करते हुए इस तरीके से ये पोम जो है लिखी जाती है. उसमें आप अपनी फीलिंग्स को तो एक्सप्रेस करते हैं, साथ में एक स्टोरी के फॉर्म में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, मतलब आप इसको समझ सकते हैं. तो ग्रीक और रोमन लिटरेचर के अंदर एलेजी जो है वो एक तरह की पोम होती थी, जिसको एक एलेजिक मीटर के तहत लिखा जाता था. इंग्लैंड के अंदर ये टर्म जो है अक्सर मेडिटेशन सॉर्ट ऑफ चीज़ के हिसाब से यूज़ की जाती थी. इन प्रेजेंट क्रिटिकल यूसेज, हाउएवर, एन एलेजी इज़ अ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोम ऑफ लैमेंट फॉर द डेथ ऑफ अ फ्रेंड. जैसे कि आपको एक फॉर्मल तरीके से एलर्जी के बारे में बताया जाए तो ये क्या है, किसी के लेमेंट, दुख को दर्शाते हुए कि आपने अपने किसी खास मित्र को खो दिया है, ठीक है, उसकी मृत्यु हुई है, तो उसको दुख जताने के लिए आप इस पोम का यूज़ कर रहे हैं. इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल टेनिसन्स इन मेमोरियम विच वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेलन. ठीक है, आप यहाँ पर मेमोरियम टेनिसन ने पोम लिखी थी जिसमें वो आर्थर हेलन के डेथ के बारे में थी वो पोम.
Sometimes the term is more broadly used for meditative poems, such as Gray's Elegy written in a country churchyard. अब कई बार ये पोम जो है मेडिटेटिव पोम्स की तरह भी यूज़ की जाती है, यानी उसको समझाने के लिए भी, जो अध्यात्म से जुड़ी पोम्स हैं उनको उनके बारे में भी बताने के लिए आप एलिजी जो है इस टर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रे के द्वारा लिखी हुई एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. The pastoral elegy, which represents both the mourner and the one he mourns, who is usually a poet as shepherd. अब यहाँ पर pastoral elegy जो है वो रिप्रेजेंट करती है मोर्नर को और एक व्यक्ति जो मोर्न कर रहा है, यानी कि जो दुख मना रहा है और जिसके बारे में दुख मनाया जा रहा है. इस तरह के जो पोएट होते हैं उनको शेपर्ड की तरह बोला जाता है. यहाँ पर पोट जो है उसको शेपर्ड बताया गया है. नेचर ऑल्सो जॉइन्स इन द माउंटेन. नेचर जो है वो भी इस चीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है. कैसे यूज़ किया जाता है? जब आप मतलब इस चीज़ को बढ़ावा देते हुए एक तरीके से इस तरह की पोम्स जो होती है उनको ऐड करने के लिए, उनके अंदर फीचर डालने के लिए एक नेचर का भी सहारा लिया जाता है. फाइनली द पोएट रियलाइजेस दैट डेथ इज़ अ रीयूनियन विद गॉड. और फाइनली जो पोएट है उसको समझ में आता है कि मृत्यु जो है वो भगवान के साथ में वापस से रीयूनियन के भगवान के पास ही जा रहे हैं आप. The most notable English pastoral elegies are Milton's Lycidius, Shelley's Adonais, and Armell's Thyrsis. कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको इंग्लिश पेस्टरल एलेजीज के, जिनमें पहले है मिल्टन की लिसिडस, फिर है पी शैली की एडोनाइज और फिर है आर्नल की थायरसिस. ओके, देन गोल्डस्मिथ्स एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग. ये आपकी बुक के अंदर इंक्लूडेड है. ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ एलर्जी. ये एक बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है. मॉडिफाइड है थोड़ा सा क्योंकि इसके अंदर प्रॉपरली दुख नहीं है. इसके साथ में उन्होंने थोड़े एक्सपेरिमेंट करके इसके अंदर और इमोशंस को भी इंक्लूड किया है. ठीक है. ही मिक्सेस ह्यूमर टू मेक फन ऑफ द कनिंगनेस इन ह्यूमन बिहेवियर. अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ह्यूमर को मिक्स किया है बताने के लिए कि इंसान का बिहेवियर जो है वो कितना कनिंग यानी कितना क्लेवर है. Conventionally, an elegy on the death of an animal would be impossible. और अगर देखा जाए एक एलर्जी जिस पे जो एक एनिमल की मृत्यु हुई है उस पर एक एलर्जी पूरी तरह से पेश करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है. सो बेसिकली वी लर्न two types of literary terms today. I hope you will be able to understand such terms, क्योंकि ये आप अगर आप टर्म्स पहले से पढ़ लेंगे तभी आपको आगे जाके जब मैं पोम्स पढ़ाऊँगी आपके सिलेबस से रिलेटेड तो आपको वो ईजिली समझ में आएगी. अक्सर होता है क्या, पहले आपको पोम्स पढ़ा दी जाती है बाद में लिटरेरी टर्म्स होती है, लेकिन अगर आप लिटरेरी टर्म्स पहले पढ़ लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. वैसे भी अब आपके मॉक टेस्ट जो है वो आने वाले हैं तो आपको बेसिकली हर चीज़ जो है बहुत ध्यान से पढ़नी है. वन वर्ड क्वेश्चंस जो है इस तरह की चीज़ों से निकल सकते हैं और आपका जो चैप्टर्स हैं उनमें से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे. सो आप पूरे चैप्टर्स को दोबारा पढ़ेंगे और एक एक लाइन पर ध्यान देंगे. और मेन क्वेश्चन ये है कि आपके पेपर के अंदर इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं जहाँ पर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, सो इन सच चैप्टर. ओके, जो भी तक आपने चैप्टर्स पढ़े हैं मैंने आपको हमेशा हर चैप्टर से पहले आपको बताया है कि इस चैप्टर के राइटर कौन है और उनके बारे में बताया है. तो आपको हर चैप्टर के अंदर आप उस चैप्टर के राइटर का नाम याद करना ही होगा और पोम के अंदर पोएट का नाम याद करना होगा. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी लर्न टू literary terms, sonnet and elegy. Read them, study them, and try to find out this rhyming scheme in the given example, and I will explain in next class. Okay, have a nice day, students.